نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت، اس کا آج یہ آخری دن ہے اور کل سے ماہ مقدس کے آخری عشرہ کا آغاز ہوگا، جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرہ کو پہلے دو عشروں سے بھی زیادہ اہم سمجھا گیا ہے شریعت میں، اور یہ پورے رمضان کے مہینے کا خلاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا، اور پھر اس آخری عشرہ میں اس خاص کو بھی خاص کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اور آپ کی نماز بہت طویل لمبی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی اہتمام فرما کر تہجد کی نماز کے لیے اپنی بیویوں کو جگایا نہیں کرتے تھے، ان کو بیدار نہیں کرتے تھے، اگرچہ اپنے طور پر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ہم سب کی مائیں، وہ نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتی تھی، لیکن اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے انہیں اٹھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھتے تھے کہ آپ کے اٹھنے کی وجہ سے کسی کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، بالکل آرام سے دروازہ کھولتے تھے اور بالکل آرام سے اٹھتے تھے کہ اٹھنے کی حرکت سے میری وجہ سے کوئی بندہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو اس قدر اہتمام تھا، دوسروں کے آرام کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہاں تک کہ تہجد جیسی نماز میں بھی آوازیں دے کر اہتمام فرما کر ازواج مطہرات کو بیدار نہیں فرماتے تھے۔ لیکن جب ماہ مقدس کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حدیث میں آتا ہے ایقظ اہلہ، تو اہتمام سے اپنی گھر والیوں کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھو تہجد پڑھو، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ شاید یہ اہتمام امت کے لیے تعلیم تھی اور اس بات کی تنبیہ تھی کہ یہ آخری عشرہ ہے، ماہ مقدس جانے والا ہے، زندگی میں معلوم نہیں پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام کہ اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے اس آخری عشرہ میں، ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آخری مبارک عشرہ پہلے سے زیادہ چستی کا مہینہ ہے، پہلے سے زیادہ چستی کا عشرہ ہے عبادات میں۔ اس وقت ہمارا جو عالمیہ ہے نا، مجموعی طور پہ ہم رواجوں میں اور فارمیلٹیوں میں اور شومنٹیوں میں کھو گئے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس ماہ مقدس کے اس آخری عشرہ میں تقریبات کا جو اہتمام ہوتا ہے اور چراغاں ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجدیں سجا کر اور محفلیں سجا کر
इस आखिरी अशरा का हक अदा कर रहे हैं। हालांकि तकमील कुरान मुक़द्दस की जो दुआ है वो मकसूद है, लेकिन उसके लेवल में अगर कोई इतना लंबा जलसा करे कि आधी रात तक तो वो प्रोग्राम चलता रहे, तो इससे जो इन रातों की रूह है वो फौत हो जाती है। इसलिए कि लोग आम तौर पे जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना इस वक्त, वो ज़्यादातर कानों के चस्कों में गुजर जाते हैं और इबादत उसमें बहुत कम होती हैं। अगर कोई मकसूदी गुफ्तगू हो, बामकसद गुफ्तगू हो और वो तरगीब दुआ हो और फिर पूरी तवज्जो के साथ दुआ हो जिसमें मुसलमान तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों को अल्लाह से धुलवा दें, तो वो तो मकसूद है। लेकिन अगर हम उसमें महफ़िल नात लगाएं और लंबी चौड़ी मजलिसें लगाएं और रात के 12-1 बजा दें और मस्जिदें सजा दें और पहले से ज़्यादा लाइटें जला दें, तो ये जो चीज़ें हैं, ये रिवाज हैं, ये मकसूद नहीं है। बल्कि रात की इबादत को अंधेरे से एक ख़ास रब्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तईनु बिलगदाति वर्रौहा व शैइन मिन अद्दुल्या, कि तुम मदद चाहो सुबह और शाम, यानी सुबह अल्लाह की इबादत करके और शाम को रब की इबादत करके और अल्लाह के दीन का काम करके अल्लाह की मदद चाहो, और कुछ रात के अंधेरे में नवाफिल पढ़ के अल्लाह की मदद चाहो। यहाँ पे लफ्ज़ जो आया है वह शैइन मिन अद्दुल्या, इसका माने अंधेरा। और हम लोग जो है ना वो इस वक्त उम्मत होनी चाहिए कि और ज़्यादा चरागा कर दो, लाइटें लगा दो, लाइटें जला दो। ये रिवाजात हैं, सुन्नत से दूरी की बात। तो हमें इस आखिरी आशरा को कैसे गुजारना चाहिए? तो इसमें एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम से पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस दुआ को कसरत से पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका माना है अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से निजात नसीब फरमा। अगर सिर्फ अपने लिए पढ़ें तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और अगर सब के लिए पढ़ें, सारी उम्मत की नीयत कर लें, तो फिर अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इस दुआ की कसरत करें इस आखिरी अशरा में, क्योंकि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और हर अमल के बाद कोशिश करें कि अल्लाह से दुआ मांगें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, अफ्तारी से पहले, तहज्जुद के टाइम में दुआ मांगें कि या अल्लाह जिन खुश नसीबों को इस मुबारक अशरा में जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता हो रहे हैं, अगर मुझ गुनाहगार का नाम भी उनमें शामिल हो जाए तो आपके ख़जानों में कमी कोई नहीं आएगी, मुझ मिस्कीन का काम बन जाएगा। ये इस तरह की दुआओं का एहतमाम भी करें, इसलिए कि सबसे बड़ी जो कामयाबी है, जो दायमी कामयाबी है, हमेशा की कामयाबी है, जिसके बाद कभी नाकामी नहीं आएगी, वो ये है कि बंदा जहन्नम से आज़ाद हो जाए, उसको जहन्नम से निजात मिल जाए, जन्नत का दाखिला मिल जाए। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। फरमाया जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में बसा लिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो पूरी तरह कामयाब हो गया, पूरी तरह कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आखिरी जुमले में फरमाया कि दुनिया तो धोखे का सामान है, इसके चक्कर में लगकर कहीं आखिरत की कामयाबी को ज़ाया ना कर देना। तो हमें जहन्नम से बचने के लिए मेहनत करनी है, और हमारी मेहनत तो टूटी फूटी है, नाक़िस है। मेहनत के बाद रब की मिन्नत करनी है, तो इंशाअल्लाह ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाएंगे। तो ये आखिरी अशरा को इस तरह गुजारें। और दूसरी बात, नवाफिल का इनफरादी तौर पर पहले से ज़्यादा एहतमाम करें, खुसूसन रात के टाइम में, क्योंकि आखिरी अशरा की ताक रातों में अल्लाह ने लैलतुल क़द्र भी रखी है
अब जो लैलतुल क़द्र की इबादत है वो कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है कि इज्तिमाई तौर पर हम ऐलान करें मस्जिद के स्पीकर से कि सारे आ जाओ जी, आज 27वीं है या 29वीं है या 23वीं है या 25वीं है या 21वीं है, इस रात को आज सारे मिल के इबादत करेंगे। इस तरह की तालीमात शरीयत ने नहीं दी हैं कि हम सब कुछ जमा करके किसी रात को बतौर ख़ास मनाएं कि ये लैलतुल क़द्र है। इसमें इनफरादी इबादत को ज़्यादा अहमियत हासिल है और वही असल है। अब उसमें नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और याद रखें, एक मसला हमारे अंदर ये है कि हम कहते हैं मैंने आज 100 रकतें पढ़नी है और जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे 4 5 4 6 8, तो रकतें जितनी भी हों सुथरी हों, पूरी तरह एहतमाम के साथ 100 के बजाय 10 हो जाएं, लेकिन वो आदाब की रियायत के साथ हों तो वो ठीक है। उसमें क़ियाम ठीक लंबा हो, सजदे में तस्बीहात, रुकू और सजदों में तीन के बजाय आप 9 दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, उसमें सवाब ज़्यादा है। तो नवाफिल की कसरत इसमें की जाए। इस आखिरी अशरा की खुसूसन जो रातें हैं, क्योंकि रात की इबादत को दिनों से अफजल करार दिया गया है, अंधेरे के साथ उसका ताल्लुक़ है। इसकी वजह यह भी है कि अंधेरों में इखलास ज़्यादा होता है। दिन को तो लोग देख रहे होते हैं, रात को हर कोई सो जाता है, तो खलवत में जो इबादत करता है उसमें इखलास ज़्यादा होता है। और अपने आप को चेक करने का तरीका भी यही है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता हूँ या लोगों की वाह के लिए पढ़ता हूँ। वो चेक तब होता है जब बंदा खलवत में नमाज पढ़े और वो भी खुशू खुजू से पढ़े, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा है। तो इसलिए नवाफिल की कसरत कर लें, पहले से ज़्यादा बढ़ा लें। तहज्जुद के नवाफिल तो हमने पढ़ने हैं, अगर हम 2-4 पढ़ रहे हैं तो उसको 8 कर दें, 10 कर दें कि आखिरी अशरा है, नवाफिल हमने बढ़ाने हैं। और इनफरादी तौर पर इशा के बाद भी कुछ नवाफिल पढ़ सकते हैं। पूरी रात में कोई हिस्सा मकरूह नहीं है। ये जो लोग समझते हैं बाज़ लोग कि रात के 12 बजे भी इस तरह कोई ज़वाल होता है जिस तरह दिन के 12 बजे होता है, तो रात में कोई टाइम ऐसा नहीं है। फजर की अजान तक, इशा की, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर, हमारे यहाँ मगरिब के फ़र्ज़ों से लेकर फजर की अजान तक आप जितने नवाफिल जिस वक्त पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस आखिरी अशरा में बतौर ख़ास नवाफिल की कसरत करनी चाहिए। और अगर किसी को कुरान का कोई हिस्सा याद है, सूरह यासीन याद है या सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान याद है, तो हमें चाहिए कि हम नवाफिल में खड़े होकर उसको पढ़ें। इसलिए कि जब कुरान बंदा पढ़ता है, और याद रखें जब कोई कारी से मुराद है कुरान पढ़ने वाला, कारी से मुराद ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरी तरह हो जिसने सब आशरा किया हुआ। कारी से मुराद कुरान पढ़ने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में अपने हुफ़ाज़ को ख़त लिखा कि जब कोई कारी वुज़ू करता है और वुज़ू में मिसवाक करता है और फिर नवाफिल में खड़े होकर कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ता आकर उसके होंठों को चूम लेता है। तो कुरान का जितना भी हिस्सा याद हो, आयतुल कुर्सी भी कुरान का हिस्सा है, ये जिसको याद है। अब हम समझते हैं कि आयतुल कुर्सी बस फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाती है और सोने से पहले पढ़ी जाती है। यूँ भी हो सकता है अगर किसी को कुरान का कोई और हिस्सा याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद है और सूरह इखलास याद है, तो इस तरह भी कर सकते हैं नवाफिल में कि नफलों की 2 रकतें यूँ पढ़ दे कि पहली रकत में खड़ा हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ दे, मसलन 11 बार। नवाफिल में ऐसा कर सकते हैं, फ़र्ज़ों में नहीं। तो 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ दे, दूसरी रकत में खड़ा हो तो 11 बार सूरह इखलास पढ़ दे। तो इस तरह ज़बरदस्त किस्म की 10 मिनट की 2 रकतें हो जाएंगी और हमारे नाम अमाल में, नेकियों में इजाफ़ा हो जाएगा। ये इस तरह का इजाफ़ा कर सकते हैं। और कुरान का इतना हिस्सा तो तकरीबन हर मुसलमान को याद होता ही होता है। जिसको और याद है, सूरह यासीन याद है, तो 2 रकतों में पूरे सूरह यासीन पढ़ दें। खड़े नहीं हो सकते तो नवाफिल में बैठने की भी गुंजाइश है। तो लेकिन यह है कि हमें इस आखिरी अशरा में नवाफिल की कसरत बहरहाल करनी चाहिए। इबादात का और ख़ुसूसन इनफरादी इबादात का इस वक्त हमारे अंदर से ज़ौक़ ख़त्म हो रहा है। हम इज्तिमाई तौर पे जुड़ जाते हैं लेकिन इनफरादी तौर पर इस तरह का एहतमाम नहीं। और याद रखें
یہ جو نوافل والی عبادت ہے یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد میں کوئی آگے پڑھتا ہے، گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ، لیکن اگر گھر میں کوئی آدمی نوافل پڑھتا ہے تو وہ افضل ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مانا یہ ہے کہ ان کو نمازوں سے آباد رکھو، ان کو تلاوت سے آباد رکھو۔ اس وقت تو ہم نے گھروں کو جو ہے نا وہ ناپاک قسم کی آوازوں سے جو ہے وہ ویران کر رکھا ہے۔ تو گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنے کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں، مسجد میں آ کر پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن گھروں میں بھی نوافل کا اہتمام کریں اور آخری عشرہ کو اس طرح گزاریں۔ باقی کون سے وہ اعمال ہیں جن کو ہم اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے وہ انشاءاللہ مسجد المصطفیٰ میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔